Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your English grammar class. Students, in the previous class we started a new lesson number 5. It is pronoun, the pronoun. Okay, so in the previous class I have explained you what is the pronoun and the types of pronoun. We discuss in details. मैंने आपके साथ डिस्कस की थी सारी टाइप्स, तो मैं आपको एक दफ़ा और रिकैप्चुलेट कर देती हूँ कि प्रोनाउन क्या होता है और उसकी कौन कौन सी हम टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। और फिर जो है देन वी कम टू द एक्सरसाइजेज व्हिच आर गिवन इन द बुक। So what is a pronoun? Pronoun is a word that is used instead of noun. एक ऐसा word जो किसकी जगह यूज़ होता है, ये noun की प्लेस पे होता है, it takes the place of noun। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इसको अच्छी तरीके से। Now come to the types of pronoun. We have 4 basic types के अलावा भी और भी types होती है pronoun की। जब आप higher level पे जाएंगे you can go through all these types। लेकिन बेसिकली जो हमारे पास टाइप्स है वो पर्सनल है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, इंट्रोगेटिव है, पॉसेसिव एंड सेल्फ प्रोनाउन। क्योंकि रिसेंटली हमने सेल्फ प्रोनाउन अपनी लैंग्वेज प्रैक्टिस में पढ़ा है, दैट इज गिवन इन योर माय इंग्लिश बुक 7 में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास 2 कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव केस एंड अदर इज ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मीन्स द प्रोनाउन दैट कम्स एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं उसका मतलब होता है दैट the pronoun usually comes at the end of the sentence। okay, फिर उसके बाद हमारे पास demonstrative होता है, that is used for indication, that is used to pointing out something or someone। उसके लिए जो हमारे पास pronoun है वो basically 4 हैं, जिसके अलावा भी होते हैं such वगैरह होते हैं, this, that, these और those मैंने आपके लिए लिख दी। you are familiar with these pronoun। उसके बाद आइए we have a third type, that is interrogative pronoun, that is used to ask the क्वेश्चन पूछने के लिए होते हैं। उसमें हमारे पास WH वाले सारे वर्ड्स हो जाते हैं, who, what, which, where, when, whose, whom and how। and then we have a possessive pronoun that shows the possession of belongingness, किसी चीज़ या किसी पर्सन से belongingness को शो करता है। तो अगर आपकी अपनी चीज़ है तो what is a pronoun? possessive pronoun will be mine। अगर हमारी है including you तो आप क्या करेंगे, ours, yours, hers, his, its, theirs। ठीक है, these pronoun usually ends with the letter s। Then we have a self pronoun. The self pronoun are the pronouns which which ends with the prefix। There is a suffix like self और selves लिखे हुए हैं। suffix वो होते हैं जो किसी word को आपके बाद में लगाए जाएं और make a new word, that is called suffix। और इसके अलावा myself, ourselves, yourselves and himself and herself and the last one is itself, oneself भी होता है। ठीक है, यहाँ आपने होपफुली मैंने आपको ये टेबल और ये चार्ट मैंने आपसे कहा था कि आप इसको कॉपी डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। अभी लेटर ऑन आई विल शो यू हाउ। मैंने आपकी एक एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव मेड द चार्ट एंड आई हैव ड्रॉन द टेबल इन द नोटबुक, इंग्लिश ग्रामर नोटबुक। लेट्स ओपन page 16। okay students, before doing the exercise I am going to show you the exercises which we have done in previous chapter। previously we have completed past perfect tense and future perfect tense। I am going to show you आप अपनी answer check your answers। okay, check your answer। these are the exercises of past perfect tense, lesson number 3। hopefully you have done it। turn the page। okay, now future perfect tense I am showing the exercises, page number 12। very easy to do। first exercise to fill the blanks with the correct form of verb, second is to change the negative and then into interrogative। in exercise C you will have to change into interrogative, and then we have a translation। okay, now open page number 16। what is the exercise
एक्सरसाइज, अच्छा इसमें दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू, वी हैव दीज 2 पेजेस 14 and 15 आर नॉट इंक्लूडेड इन योर बुक, आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, और दीज हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे सिलेबस में. सो एक्चुअली द एक्सरसाइज स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर ऑन पेज नंबर 16. What is the exercise? Exercise is select and fill in the blanks with suitable pronouns given in the bracket. आपके पास ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए हुए हैं प्रोनाउन के, आपको सुटेबल प्रोनाउन अकॉर्डिंगली इसके यूज़ करना है. आप कर सकते हैं, बहुत इजी है. फॉर द फर्स्ट सेंटेंस इज यू आर मोर इंटेलिजेंट दैन डैश ही और हिम. सो व्हाट कम्स, आपको पता है कि जब हम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस होता है उसमें हम मोस्टली वी यूज़ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो इट इज़ बेटर इंस्टेड ऑफ राइटिंग ही हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हिम लिखेंगे. ठीक है, इस तरह आपको ये सॉल्व करनी है. नाउ वी हैव सेकंड व्हाट इज सेकंड व्हाट शी इज टॉलर देन डैश मी और आई. सो व्हाट कम्स द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इट विल बी मी. ठीक है. अच्छा, जो थर्ड है इसमें थोड़ा सा आपके पास एक रूल बता रही हूँ. ये क्वेश्चन है आई रन एज फास्ट एज डैश. जब भी एज का वर्ड आता है तो उसके बाद हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव केस, हालांकि यहाँ पर उसूली तौर पे क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रूल, एज पर रूल यहाँ पर दैम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एज है तो हम इस वक्त यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे, दैट इज़ दे. ठीक है. तो ये आप एक बात आपके लिए बस इसमें इन सारी एक्सरसाइज में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको शायद नहीं मालूम हो, तो वो यही थी कि इसमें जो है एस के बाद हमेशा कौन सा केस यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं. ठीक है. इस तरह आप सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड शी. या क्या होगा, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, इट विल बी मी. Who broke the glass if not dash? अब आप खुद चेक कर लीजिएगा. He is Ahmed. Do you know dash? Dash bought this car. They are far better players than dash. Dash assignment is complete. This man is dash. So you have these exercises. You will have to solve these exercises as I have solved the first 4 sentences for you. Now come to exercise B. What is exercise B? You will have to fill up the blank with suitable possessive pronouns or possessive adjective given within the bracket at the end of each sentence. यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट में बताया था कि एक possessive pronoun होता है और एक possessive adjective होता है. तो आपको यहाँ पर दोनों दिए हुए हैं, आपको खुद चेक करना है कि कहाँ जो है वो possessive pronoun आएगा और कहाँ possessive adjective. मैं आपको एक हिंट बता देती हूँ कि अगर आपकी ब्लैंक के बाद कोई नाउन आ रहा है, यानी ये ब्लैंक है आपकी, उसके बाद कोई नाउन लिखा हुआ है, तो वहाँ पर जो है ऑलवेज देयर विल बी पॉजिटिव एडजेक्टिव. और अगर जहाँ पर कोई नाउन नहीं आ रहा है तो वहाँ पर कौन सा आएगा, वहाँ पर कौन सा पॉजिटिव आएगा, वहाँ पॉजिटिव प्रोनाउंस आएगा. ठीक है. आप देख लीजिए. दिस इज़ डैश बुक बट दैट वन इज़ नॉट डैश. तो बताइए यहाँ पर मैं इन द फर्स्ट ब्लैंक मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे माई लिखना चाहिए या माइन. चलें चेक करते हैं हम. दिस इज माइन बुक. इज इट ओके टू राइट माइन? नो, इट इज़ inappropriate to write mine here because mine के बाद mine is a pronoun and there is no noun after the pronoun. तो instead of writing mine हमें क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर my लिखेंगे, but that one is not mine. ठीक है. The second option is mine. Okay. In this way you will solve this exercise. Very easy to do. एक और कर लेते हैं. We have taken dash shares. Has he taken dash? ठीक है. आप ये बताइए. We have taken dash shares. अब shares is a noun. अब यहाँ पर क्या आपको लग रहा है, क्या यहाँ पर जो है वो suitable है, तो यहाँ पर हो जाएगा we have taken our shares. Has he taken? अब he है तो he के लिए क्या यूज़ होगा, possessive pronoun, वो होगा आपका his होगा. Has he taken his? Okay. Now come to exercise C. Exercise C. What is exercise C? Rewrite these sentences using the possessive pronoun. The first one is done for you. ठीक है.
कुछ आपको जो है वो ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वो आपको उनका पॉजिटिव प्रोनाउन की फॉर्म में आपको उसका लिखना है। ये भी पोजीशन शो कर रहे हैं, लेकिन ये पोजीशन शो कर रहे हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है ये पोजीशन आपको शो की जा रही है थ्रू नाउन। देखिए यहाँ पर नाउन है, साद्स बैट, यानी किसका बैट है, हुज बैट इज दिस, दिस इज साद्स बैट। तो ये पोजीशन हो रही है नाउन के थ्रू। स्टूडेंट जो है पोजीशन जो है, बिलोंगनेस जो है वो 3 तरीके से शो की जा सकती है, थ्रू नाउन, थ्रू एडजेक्टिव और थ्रू प्रोनाउन। ठीक है, अब यहाँ देखिए दिस बैट इज हिज। अब ये जो पोजीशन शो की है बैट की, ये प्रोनाउन के थ्रू हुई है, यानी पॉजिटिव प्रोनाउन के। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट सेंटेंस, दीज आर माई फाइल्स। अब आप यहाँ देख लीजिए कि जो फाइल्स की जो पोजीशन है वो किस तरह शो की जा रही है, वो थ्रू पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या है कि आपको इनको पॉजिटिव प्रोनाउन की फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, दीज फाइल्स आर, यस, माइन, माई फाइल्स चेंज इनटू माइन। ओके, दोज आर क्लोथ्स। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव की फॉर्म में है, तो आपको इसको पॉजिटिव प्रोनाउन में लिखना है, तो द सेंटेंस विल बी दोज क्लोथ्स आर आर्स। ठीक है, ये आप जो है वो इस तरह करके पूरी एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, दिस इज़ द होमवर्क फॉर टुडे, टू सॉल्व एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी एंड एक्सरसाइज सी। ओके स्टूडेंट, बिफोर लीविंग द लेक्चर, बिफोर लीविंग मैं आपको जो है वो आई विल शो यू योर नोटबुक कि मैंने आप प्रीवियस काम कैसे किया है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। जो हमने पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का काम किया है, आई एम गोइंग टू शो यू फ्यूचर कंटिन्यूअस, आप लोगों ने होपफुली कर लिया होगा। उसके बाद था हमारे पास टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का ये हमने काम किया था, वही ट्रांसलेशन, फॉर्मेशन फर्स्ट एंड देन ट्रांसलेशन, देन वी हैव अ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट का भी हमने जो है वो कि आपका पास्ट परफेक्ट का काम है, जिसमें आपने ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन की होगी। मैंने आपको सेंटेंसेस दिए थे, 5 सेंटेंसेस दिए थे। देन वी हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको यही बिल्कुल इसी तरह कॉपी वर्क करना है। देन आई गिव यू द एक्सरसाइजेज। फर्स्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, ये आई हैव सॉल्व ऑल दीज सेंटेंसेस एज इट इज़ आस्क्ड, जैसे पूछा गया है वैसे ही मैंने उसका आंसर दिया है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेशन है, चेक योर आंसर्स। ओके, और एक मैंने आपको, जब मैंने प्रोनाउन का एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप प्रोनाउन की पहले चार्ट बनाएंगी, उस चार्ट बनाएंगे आप लोग एज आई हैव मेड। ओके, एंड देन you will have to draw the table. Okay, I think so you have done it. This is the practice exercise for you. What is the question? Fill in the blanks with suitable pronoun. आपको जो है मैंने ये मिक्स करके सेंटेंसेस दिए हैं, जिसमें आपको जितने भी टाइप्स के प्रोनाउन है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव प्रोनाउन, सेल्फ प्रोनाउन हो गए, आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, उसमें से जो आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस सही लगे आप उससे फिल कीजिएगा ये ब्लैंक्स। ओके, कैन यू, आई एम शोइंग यू क्लियरली हियर। नोट डाउन द सेंटेंसेस, कॉपी डाउन द सेंटेंसेस। फॉर द फर्स्ट इज डैश 2 people आर माई फ्रेंड्स। ओके, आप देख लीजिएगा यहाँ पर विच प्रोनाउन इज सुटेबल फॉर दिस प्लेस, वेदर देयर विल कम possessive pronoun, self pronoun, personal pronoun, demonstrative or interrogative. Okay, then we have a next sentence, the children burn dash on the hot stove. ठीक है, my younger sister looked at dash in the mirror. Whose jacket is this? Is it dash? Have you got your pen? Dash did you find it? Whose book is dash? The 7th is the police officer asked dash for my address. The 8th one is you need to let dash know the information ahead of time. Dash is so happy for her sister.
dash did the students come late? Okay, there are 10 sentences are there. Correct, use the correct pronoun, suitable pronoun in the given blanks. Okay, this is your homework for today. You will have to do 2 exercises in your book, and this exercises you should do in your notebook. Okay, I am showing you the homework. Note down the homework. What is the homework for today? Do exercise A and B in your book and exercise 1 in notebook. Okay, this is all for today. Inshallah, we will meet you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.